ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں تو چلیں، تو اس میں ایک سوال یہ آئے گا کہ حدیث و عیسیٰ بن ہشام یہ کس کی کتاب ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ مویلحی کی ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث و عیسیٰ بن ہشام کیا ہے کس سر؟ کی ہے؟ قصص ہے یا روایا ہے؟ قصہ ہے سب، قصہ روایہ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے نا، قصہ اور روایہ کی بات کریں تو دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ روایہ تھوڑا طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، اس میں کئی کئی پہلو ہوتے ہیں، اور قصہ جو ہوتا ہے تھوڑا شارٹ ہوتا ہے، لیکن جی اگر جی قصے بہت زیادہ شارٹ ہوں تو وہ ہوتا ہے قصہ قصیرہ۔ تو جو نئے دور، جو پرانے دور میں تھا، مطلب الاسر الحدیث کے بالکل آغاز میں جو لکھے جاتے تھے نا جی قصہ یا جی روایہ، تو اس کو قصہ روایہ دونوں بول کر کے روایہ اور قصہ مراد لیتے ہیں۔ تو حدیث و عیسیٰ بن ہشام کس کی ہے؟ مویلحی کی ہے۔ اور یہ لیالی سطح کس کی ہے؟ یہ حافظ ابراہیم کی ہے۔ اور لیالی الروح کس کی ہے؟ لیالی الروح الحائر یہ محمد لطفی جمعہ کا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیز ہے کہ یہ جو تینوں کتابیں تھیں، یہ تینوں کتابیں تھیں تو قصہ کی، لیکن اس کا اسلوب جو تھا بالکل مقامے والا اسلوب تھا، بس اس میں یہ چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد جو دور آیا وہ دور آیا کہ ترجمے کا، ترجمے میں جو ہے وہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی کتاب ہے۔ اور پھر جو دوسرا دور آیا وہ دوسرا دور ہے کہ یورپ کا جو نہج تھا لکھنے کا، قصہ بالکل اسی اسلوب میں لکھنا، تو اس میں سب سے پہلی جو روایت آئی وہ ہے روایت زینب۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ سب سے پہلی روایت عربی ادب میں کون سی ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ زینب ہے، روایت زینب۔ یہ کون سا ہے؟ زینب ہے۔ اور یہ کس کی ہے؟ یہ محمد حسین ہیکل کی ہے، ٹھیک ہے؟ زینب ہے محمد حسین ہیکل کی سب سے پہلی روایت۔ اور یہ کب وجود میں آیا تھا؟ 1914 میں، 1914 میں زینب آیا تھا۔ تو اس میں بس یہی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں۔ اور زینب کا یہ جو زینب کے لکھنے والے تھے محمد حسین ہیکل، یہ کہاں کے تھے؟ محمد حسین ہیکل کہاں کے تھے؟ تو یہ مصر مصر کے تھے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں۔ سر یہ زینب جو ہے محمد ہیکل کی، یہ کب شائع ہوئی؟ 1914، 1914 میں انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا زینب، 1914 میں، شاید بعد میں ہوئی تھی۔ ایک منٹ، تو زینب 1914 میں شائع ہوئی تھی یہ، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 14-15، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 13، تو ہو سکتا ہے 13 کے بالکل لاسٹ اور 14 کے بالکل شروع میں ہو، تو 14 میں شائع ہوئی تھی یہ، ٹھیک ہے؟ اوکے چلیے، تو ہو گئی 3 چیزیں۔ اب یہ ہے کہ عربی جو قصہ لکھنے والے تھے ان میں سے کون کون سے سب سے مشہور لوگ ہیں؟ تو قصہ اور روایت لکھنے والے تو محمود تیمور، توفیق الحکیم، توفیق عواد، نجیب محفوظ، محمد عبد الحلیم عبداللہ، طہ حسین، ابراہیم المازنی، عبد الحمید جودہ السحار، یہ سب جو ہے بالکل جب یہ فن کمال کو پہنچا، یعنی قصہ اور روایہ، تو اس کی نمائندگی کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ تو ان لوگوں کو یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ قصہ اور روایت لکھنے والے ہیں: محمود تیمور، توفیق حکیم، نجیب محفوظ، محمد عبد الحلیم عبداللہ، طہ حسین۔ اب ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا تھوڑا پڑھنا پڑے گا۔ تو ان میں سے سب سے مشہور جو ہیں یہ ہیں مصطفیٰ لطفی منفلوطی۔ تو آئیے مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا جان لیتے ہیں۔ اور لطفی منفلوطی کا ہم لوگ ایک چیپٹر ان کا ہے ہمارے سلیبس میں داخل، تو جب وہاں جائیں گے تو وہاں صرف ہم نصب پڑھیں گے اور ان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے یہیں ان کے بارے میں ٹھیک سے پڑھ لیجئے۔ تو منفلوطی جو تھے، اس کا نام تھا مصطفیٰ لطفی المنفلوطی۔ یہ پیدا کب ہوئے تھے؟
ये पैदा हुए थे 1876 को। मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती 1876 को पैदा हुए थे, और इसके बाप जो थे, इसके बाप थे मिस्री, इसके बाप थे मिस्री और इसकी माँ थी तुर्की। इसके बाप मिस्री थे और इसकी माँ तुर्की थी। किसकी माँ? मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की। ओके। और ये पैदा कहाँ हुए थे? मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती ये मिस्र में पैदा हुए थे, मनफलूत शहर में। ठीक है, मिस्र में मनफलूत शहर में पैदा हुए थे। इन्होंने कुरान जो है 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ कर लिया था। 9 साल की उम्र में मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। और मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती क्या हैं? ये अदीब हैं और शायर हैं मिस्र के, ये याद रखिएगा। फिर जो है 9 साल की उम्र में जब इन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, तो इनके अब्बू ने जो है फिर इनको जामे अज़हर भेज दिया था। और जामे अज़हर में कितने साल रहे ये? 10 जामे साल। अज़हर में मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती 10 साल रहे। 10 साल रहे और वहाँ रह करके उन्होंने कुरान करीम, हदीस नबवी, तारीख़, फ़िक़्ह और कुछ अरबी अदब की किताबें पढ़ी। तो इन्होंने यहाँ रहते हुए, जामे अज़हर में रहते हुए जो 10 साल रहे थे, इन्होंने इन शुअरा को पढ़ा था, इन शुअरा उदबा को, अबू तम्माम, बुख्तरी, मुतनब्बी, शरीफ रज़ी और ये इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, इब्न खल्दून, इब्न अलसे। ये देखिए मैं कर्सर ला रहा हूँ तो कर्सर आ रहा है, कर्सर शो हो रहा है आप लोगों को, जैसे ये एरोल जी यहाँ जी, जा रही शो है। रहा शो रहा। ठीक है, ओके। चलिए मैं कर्सर के इशारे पढ़ाता हूँ। और ये देखें, मुस्तफ़ा मनफलूती का ताल्लुक जो है जामे अज़हर में ही शेख मोहम्मद अब्दुहू से हुआ था। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुहू से। तो फिर शेख मोहम्मद अब्दुहू से जब इनका ताल्लुक हुआ, तो उनसे ये पढ़ते रहे मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती, और उनसे इन्होंने जो है कई चीज़ें पढ़ी थी। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, उनसे पढ़ते रहे, और पढ़ने के बाद जब शेख मोहम्मद अब्दू की वफ़ात हो गई थी, तो फिर वो अपने शहर लौट आए थे। शेख मोहम्मद अब्दू, शेख मोहम्मद अब्दू जब अपने शहर लौट आए, तो यहाँ लौट करके फिर उन्होंने कई मैगज़ीन में लिखना शुरू किया। तो उनमें से एक मैगज़ीन है वो अल-मुअय्यद, अल-मुअय्यद में लिखना शुरू किया। इन्होंने फिर कई किताबें लिखी। जो इनकी किताब हैं जो वो बहुत ही अहम हैं, वो ज़रा देखें। इनकी किताब है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की, एक है अन-नज़रात। तो नज़रात कितनी जिल्दों में है? ये 3 जिल्दों में है। और नज़रात में है क्या? इसमें है ये कि एक मैगज़ीन था मुअय्यद के नाम से। ठीक है, मुअय्यद के नाम से। मुअय्यद में वो हर हफ्ते वो मकाला लिखा करते थे। वो नक़्द भी होता था उसमें, सियासत भी और इस्लामियात भी, ये सब होते थे। तो वही जो मकालात थे मुअय्यद में जो लिखते थे, उसी को छापा गया है अन-नज़रात के नाम से 3 जिल्दों में। तो याद रखिएगा ये मुअय्यद। इनकी दूसरी किताब है अल-अबरात, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की। अबरात क्या है? अबरात जो है किस्सों का मजमुआ है, और इसमें कितने किस्से हैं? इसमें 9 किस्से हैं। और जो 9 किस्से हैं, इनमें से 3 किस्से तो खुद मनफलूती ने लिखे थे। 3 किस्से खुद इनके अपना वज़ा करदा था, वह अल-हजाब, अल-हाविया। और बाकी जो किस्से थे, ये बाकी किस्से तर्जुमा किया हुआ था, यानी कि यूरोपियन लैंग्वेज से इन्होंने तर्जुमा किया था। जैसे कि अश-शुहदा हुआ, और ऐसे अल-ज़िक्रा, अल-जज़ा, अल-ज़हिया, अल-इंतक़ाम, ये सब तर्जुमा किया हुआ था। ठीक है। इसकी एक किताब है फ़ी सबील ताज। फ़ी सबील ताज बहुत ही अच्छी किताब है। फ़ी सबील ताज, फ़ी सबील ताज जो है इन्होंने मनफलूती ने ये फ़्रांसीसी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया था। फ़ी सबील ताज असल में ये किताब थी जिसको लिखा था फ़्रांसो कोबिया ने, तो उसी का तर्जुमा किया है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती ने फ़ी सबील ताज के नाम से, और ये रिवाया है। और इसकी एक रिवाया है, रिवायत बोल व फरजीनी। ठीक है, ये भी मनफलूती ने तर्जुमा किया है।
ठीक है, ये भी मनफलूती ने तर्जमा किया है फ्रांसीसी ज़बान से, और यही जो है अल-फज़ीला के नाम से शाये हुआ, अल-फज़ीला के नाम से शाये हुआ था यही किताब। तो अल-फज़ीला या रिवायत बोल व फरजीनी किसकी है? ये मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती की है। इनकी एक किताब है रिवायत अश-शाइर, शायर ये भी रिवाया है, तो इसका भी इन्होंने ये रिवाया है अश-शाइर। एक है इसकी रिवाया तहता ज़िलाल ज़ैज़फ़ून, ये भी इन्होंने फ्रांसीसी ज़बान से तर्जुमा किया था, तहता ज़िलाल ज़ैज़फ़ून। ठीक है, तो ये इनकी अहम किताबें हैं, ये याद रखिएगा। ओके, चले मनफलूती के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब चलते हैं आगे हम चलते हैं। अब हम जो है शायरी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या हो रहा है? परेशान करके रख दिया। चले है अपनी जगह पे है ये। स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर, नहीं है जी नहीं सर। सर इसका पीडीएफ की टाइमिंग चल रहा है क्या? जी, पता नहीं, शायद ऐसा ही तो नहीं हो रहा है। उस पीडीएफ की टाइमिंग चल रहा है, इसलिए वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है। मुझे नहीं पता ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। वो जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो तो देख रहे हैं। अब दिख रहा है, ये बताएं। जी जी दिख रहा है।